Hi all. Today our topic is KGR lesson number 3 Behind English Reader. Okay? English Reader. So open your book page number 32. Page number 32. So KGR is a little girl, but she always afraid her father, always afraid her father, because to the little girl he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responds with goodbye father. सुबह जब आपके पापा ऑफिस जाते हैं, when he has to go to office, तो उस टाइम his mood is fresh. When you have to come to the school, good morning ma'am, good morning sir, good morning everybody, that time your mood also fresh. But when you come back from the school, some stress also with you, जे आज हमको क्या करना है, आज हमारे इतने सारे वर्क है, आज हमारे इतने सारे क्लास है, आज हमारे इतने सारे, तो ये जो होता है ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी आप सब सोचते हैं अरे पापा है ना, पापा तो ये कर दिया, लेकिन पापा गुस्सा क्यों होता है? बिकॉज ही वॉज वर्किंग 8 to 10 hours इन ऑफिस, बट व्हेन ही कम बैक, तो दैट टाइम ऑल्सो ही कैजुअली क्या होता है उनके साथ थोड़ा स्ट्रेस होता है, वर्कलोड होता है, तो दैट टाइम ही वॉज सम डिफरेंट फ्रॉम द मॉर्निंग टाइम. ओके, आपके पेरेंट्स जो होता है वो भी, उनको भी ऐसे ही होता है, उन्होंने भी क्या करते हैं, उनकी भी पेरेंट्स थोड़ा सा केजिया के ऐसा लगता था मेरा पापा बहुत गुस्से वाले हैं. एक्चुअली दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट ट्रू. वो सही नहीं था, वो गलत था, तो वो उसने ये सोचा था. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस. लेकिन जैसे उसके पापा सुबह जब जाते हैं, देखो उसको कैजुअली बच्चे को जैसे पेरेंट्स होते हैं किस करके जाते हैं, वो भी पापा को गुड बाय बोलते हैं, लेकिन जब ही रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस दैट टाइम द केजी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर. वो क्या स्टेयर में खड़े रहते हैं. व्हेन हर मदर टोल्ड गो एंड टुक अप द बूट्स फ्रॉम योर फादर एंड गिव स्लीपर. जब उसके पापा घर पे आते हैं, दैट टाइम ही शाउटेड वेयर इज़ माई टी, वेयर इज़ माई पेपर, should we bring one cup tea for me? So it is the casual, not only for KG's father, it is the casual for each and everybody's father. It is the casual for each and everybody's father. Okay. So by that time he had spectacle. Well, KG hurry up and pull off these boots and take them outside. हाँ, तो उसकी मम्मी बोलती है come बेटा and go to your father and took up the boots and give slipper to him. And boots keep outside. But Kezia, वो मतलब that time she was very anxiety. वो क्या होता है उसके अंदर ऐसी चीज़ होती है जो बोल नहीं पाते हैं, टक 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 करते हैं, वो तोतलाते रहते हैं. You don't know if you started like that, mother will have to take you to the doctor. तो उसके मम्मी को बोला है उसके पापा ने, if she is not talking with correct words, she is doubting when she is talking, लेकिन वो एक्चुअली that is not fact. When she is talking with her father, that time only she is doing like that, not in front of others. जब दूसरे के सामने होता है उस टाइम नहीं होता था. कब होता है? जब पापा शाम को वापस आते हैं तब होता है ये चीज़. ठीक है. What's the matter? What are you looking so vexed about, mother? I wish you taught this child not to appear to the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो उसके पापा को ऐसा लगता है my child is very anxiety, my child is very different from other children. तो उसके पापा बोलते थे जे take to her to the doctor for treatment. डॉक्टर के पास ले जाओ और इसका ट्रीटमेंट करा के लाओ. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, तो उसको लगता है, she thought my father is not a human being, my father is the monster, my father is a monster.
उसके पापा को वो उस टाइम लगता था जे मेरी पापा एक अलग चीज़ का है, ना उनकी शक्ल अच्छी लगती है मुझे ना कुछ भी, लेकिन वो उसकी थॉट होता है, केजीएफ का थॉट था उन दैट मोमेंट, उसी समय उसकी लगता था, लेकिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नॉट दैट। फिर क्या हुआ, one Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो Sunday both are at home, father and mother. तो our grandmother told थोड़ा डर कम होने के लिए बोलते हैं go to the parents bedroom and go and talk with them. जाओ जाके मम्मी और पापा से बात करो, तो you have to fearless, तो आपकी डर कम हो जाएगा। His feet on one of the best cushion, sleeping soundly strong. तो लेकिन उस टाइम क्या होता है, मदर वॉज रीडिंग ए बुक, संडे मम्मी पापा क्या करते हैं, अपने बिजी रहते हैं, क्या करती है मम्मी, शी वॉज रीडिंग ए बुक और फादर वॉज लाइंग ऑन द सोफा, हाँ, विथ कवर हिज माउथ विद हैंडकरचिफ, अपने सोफा में स्ट्रेच होकर लंबा होकर सो जाते हैं और क्या करते हैं, एक रुमाल अपने ऊपर मुंह के ऊपर रख देते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until the walk and stage and asked him, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown now. तो वो ऐसे करके जब देखते थे अचानक उसको बोलते, हम ऐसा करके मत खड़े हो, हाँ, आपको देख के क्या लगता है, पापा अगर बेटी को ऐसा बोले जो तुमको लग रहा है एक उल्लू जैसा लग रहा है हो, लाइक ए ब्राउन उल आउट। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her the father's birthday was next week. One Sunday she was at the home because she had cold, that's why she didn't go to the school. So that day, one opportunity of her grandmother, she told to the Kezia, जाओ, go, you know your next Sunday your father's birthday is coming, so you try to give a surprise gift to your father, तो मेक एन वन गिफ्ट। तो उसको बोला जी जाओ, तुम्हारे पापा को खुश करने का एक तरीका है, पापा की बर्थडे आ रहा है, उस दिन आपने एक गिफ्ट अपने पापा को दो। तो उसने क्या किया, एक पिन कुशन बनाने के सोचा, पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट। पिन कुशन कैसे बनाया, 3 साइड्स ऑलरेडी सीव्ड और 1 साइड ओपन। अभी व्हाट इनसाइड से गिफ्ट, व्हाट थिंग्स, तो शी थॉट, व्हाट थिंग्स आई पुट इनसाइड ऑफ द कुशन। तो कुशन के अंदर, बाहर वाला तो कॉटन की कपड़ा हो गया, सिल्क की कपड़ा हो गया, लेकिन अंदर में कुछ तो भरने पड़ेगा, तब तो कुशन इज परफेक्ट फॉर देम, क्योंकि उसके पापा को पैर के ऊपर कुशन रख के सोना बहुत पसंद था। तो कुशन, तो व्हाट, तो शी हैज़ गन टू हर पेरेंट्स रूम एंड so many papers on the table, बहुत सारे पेपर टेबल पे पड़ा हुआ। तो उसने क्या किया, some papers taken and torn, and उसको फाड़ दिया, फाड़ के each and every papers kept inside of the cushion. When evening time father has to come back and he was found, where is his papers, he searched out but he didn't find. He told his wife, that means Kezia's mother, I didn't find my papers and those papers are very important. Mother told to the servant and to search out each and everywhere, but she never did. तो उसको मिला नहीं। When she went to the Kezia's room, one cushion is there, new cushion. तो उसकी मम्मी कुशन देखा है तो डाउट हुआ, बोले व्हाट यू केप्ट इनसाइड ऑफ द कुशन, लड़की को पूछा, तो लड़की ने जवाब दिया, केजिया टोल्ड, यस आई केप्ट सम पेपर्स, व्हिच पेपर वेयर लाइंग ऑन द टेबल ऑफ माय फादर, पापा के टेबल पे जो पेपर पड़ा था मैं उसमें से उठा के इसमें कुछ पेपर टर्न करके डाल दिया। तो मदर टोल्ड हिज फादर, केजियास मदर टोल्ड हिज फादर, टोल्ड हर फादर, तो फादर टोल्ड ओके, वैन ब्रॉट वन रूलर, एक स्केल लाया और अच्छे से अपने बच्चे के हाथ में मारा। शी वॉज अफ्रेड एंड शी वॉज क्राइंग, ठीक है, एंड
beside of her house one neighbor, उनका नाम था मैकडोनल्ड. He has also 4 sons, and the children were playing with their father frequently. उसके जो पापा बाजू में, तो मम्मी तो ऐसा कर कि पापा तो मारा है, तो शी वॉज क्राइंग. आफ्टर दैट नेक्स्ट डे शी थॉट जे गो आउटसाइड. व्हेन बाहर जब आया देखा जे मैकडोनल्ड जो उनके नेबर है उनकी 4 बच्चे के साथ मैकडोनल्ड खेल रहे हैं. मतलब पापा मैकडोनल्ड जो फादर और उनके 4 बच्चे लाइक ए फ्रेंड. कोई झूल रहा है, कोई टंग रहा है, कोई शोल्डर में बैठ रहा है और उसको लेके खेल रहा है. तो शी थॉट वेयर इज़ माई फादर, वेयर इज़ दैट चिल्ड्रंस फादर. चिल्ड्रन का पापा, बच्चे के जो पापा हैं, इतने सारे बच्चे के जो पापा हैं वो कहाँ है और हम कहाँ हैं. ठीक है, मेरी पापा और उनके में सो मैनी डिफरेंट. तो वो ऐसा सोच के घर पे आ गया. Casually she was afraid of her father. Next day उसकी मम्मी she was ill and she was hospitalized and her grandmother also gone with her. उसकी मम्मी की तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, जिसके कारण कजिया की जो दादी थी वो भी उनके साथ गए थे. कहाँ? हॉस्पिटल में. तो केजिया ओनली वन, शी वॉज ओनली वन एट द होम इन फ्रंट ऑफ हर फादर. उसके पापा के सामने वो अकेली हो गई बिकॉज हर ग्रैंड फादर ऑलवेज सपोर्टेड, हर मदर ऑल्सो सो मेनी टाइम सपोर्टेड टू हर. तो ओनली वन कुक ऑल्सो देयर एंड जो खाना बनाते हैं वो एलाइस, उसका नाम एलाइस, वो घर पे था. आफ्टर कंप्लीट her dinner he told go to bed and now sleep. एलाइस ने बोला जाओ बिस्तर में सो जाओ और जाके खाना खा लिया, खाना खा के जाके सो जाओ और सो जाओ, योर मदर विल नॉट कम टुडे. तो दैट टाइम केजिया वॉज वेरी स्केयर. उसको बहुत डर लगा बिकॉज व्हेन शी स्केयर्ड और अफ्रेड एनीवे. तो ऑब्वियसली दैट गर्ल ओनली वन चाइल्ड इज देयर. तो उसने क्या किया, उस टाइम उसने डर गया. डर के मारे वो सो नहीं पा रहा था, शी कैन स्लीप. तो उसके फादर आया. हर फादर हैज़ टू कम एंड टुक अप हर एंड गो टू द इन ओन बेड रूम. केजीएस के पापा उस टाइम आए, देखा बच्चे काँप रहे हैं, डर रहे हैं, कोई नहीं है, ना मम्मी है ना दादी है. उसको उठा के लिया और अपने घर पे ले जाके बिस्तर में सुलाया. And whole night he looked after his daughter. तब केजिया को एहसास हुआ कि माई फादर इज़ नॉट ए बैड पर्सन, माई फादर इज़ ए गुड पर्सन. मेरे पापा खराब आदमी नहीं हैं. एक्चुअली हिज हार्ट इज़ वेरी सॉफ्ट. जब उसके पापा काम के होते हैं, स्ट्रेस होता है, हार्डवर्क होता है, तो ऑब्वियसली ऑल पीपल आर फीलिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस. तो ये जो लेसन है, तो आप घर पे जाके ऐसा सोचते हो जे मेरे पापा बहुत हार्ड है, मेरे पापा हमेशा डांटते हैं. तो एक बात ऑलवेज रिमेंबर, आपके पेरेंट्स, आपकी एल्डर्स, आपकी टीचर्स, वाई दे आर स्कॉल्डिंग? बिकॉज दे डोंट थिंक इट विल बी रिपीट बाई यू अगेंस्ट ऑफ देम. तो ये दूसरे बार ना हो. सपोज आपके घर पे आपके कोई गेस्ट आए, योर फादर्स फ्रेंड, अंकल प्लीज़ कम, प्लीज़ सिट डाउन, आई विल कॉल माई फादर. इतना बोलने से आपको क्या होता है, आपका कुछ खराब ही नहीं हुआ. लेकिन आपके जो फादर, ही इज़ ऑल्सो हैप्पी एंड हिज फ्रेंड ऑल्सो हैप्पी. मे बी ही विल से योर डॉटर और योर सन इज़ वेरी गुड. इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा. लेकिन अगर अपने इस टाइम अगर बोलते हो तो इसमें आपका अच्छा ही होगा. पेरेंट्स कब डांटते हैं, टीचर्स कब डांटते हैं, आपको मालूम है? आप गलती दोबारा ना करो इसलिए डांटते हैं. दैट्स वाई दे से डोंट डू इट. आपने फिर से इसको
मत करो, इसीलिए आपको डांटते हैं। एक बार आपने अगर किसी की बैग से कोई सामान लिया, टीचर्स को पता चला, तो टीचर ने क्यों मना करते हैं, पनिशमेंट क्यों देते हैं? जे नेक्स्ट टाइम आपने ये बात फिर से ना करो। समझ में आया? पेरेंट्स भी वही करते हैं। आपके घर पे बड़े भाई बहन भी आपको बोला, ए वो अंकल है, आप अंकल से ऐसा बात मत करो। क्यों? आपको एक बार आपको अच्छा नहीं लगेगा, एक बार आपको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन होल ज़िंदगी है फॉर एवर आप सीख जाओगे ये नहीं करना है। डज एंड डोंट, कुछ करना है और कौन सा नहीं करना है, ये आपके डिसाइड होता है फ्रॉम योर चाइल्डहुड, बचपन से। तो अगर आप सोचते हो मेरे पापा तो हमेशा मुझे डांटते हैं, ड्यू टू योर फेवर ऑफ यू, बिकॉज ही लव्स यू। आपके पापा आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए हैं आप कभी गलत रास्ते में ना जाओ। हाँ, दैट्स वाई आपके ये देखते हैं जो कभी आप खराब रास्ते में नहीं गए हो, आपकी अच्छा ही होना चाहिए। एक बार आप डांट खाओगे ना तो मे बी यू विल बी चेंज। हाँ, अगर बोलो नहीं मैं तो डांट खाने का आदत बना लिया, दैट इज़ अनदर थिंग, दैट इज़ अनदर थिंग, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, करो ऐसा। तो आज हम लोग का जो लेसन है इसमें आपकी कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगी, यू हैव टू कंप्लीट। ठीक है, आप एक घर पे कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज देयर। तो ये आज हम लोग के लेसन हमको क्या सिखाया, ये आप किसी की गुस्सा देखते हो तो गुस्सा देख के उनको ये मत सोचो जे ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन, शी इज़ नॉट ए गुड पर्सन। क्योंकि गुस्सा कभी होता है जब वो आपको प्यार करते हैं। जो आपको प्यार करते हैं तो वही आपको मना करेगा, अभी खेलने का टाइम नहीं है, अभी पढ़ने का टाइम है, अभी सोने का टाइम है, अभी खाना खाने का टाइम है, अभी टीवी देखने का टाइम नहीं है। अब सपोज़ आप खाना खाते खाते टीवी देखते हो, आपके मम्मी ने उसकी स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या आप क्या करते हो? नहीं खाऊंगा, जाओ। डोंट से लाइक दैट, डोंट से लाइक दैट। क्योंकि अगर आपने ऐसे बिहेव करो तो आपकी मम्मी को हर्ट होती है, प्लस आप अपने अच्छा ही नहीं कर रहे, आप अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मार रहे हो, बुराई कर रहे हो। स्पेशली यू आर स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड, सो बी केयरफुल फ्रॉम नाउ, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर स्टेयर्स ऑफ योर लाइफ। जिंदगी में 10th एक ऐसी क्लास है जहाँ पर सीढ़ी से ऊपर चढ़ने में जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहला जो सीढ़ी होता है वो सीढ़ी होता है 10th की बोर्ड, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड। ये 9th से ही शुरू होती है। 9th में आप जो सीखोगे वो 10th में आपको काम आएगा। फ्रॉम अप टू 8th स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर ऑल आर given by PDF and whatever they are at present PDF, otherwise in the class. But 9th onwards, not a single teacher write down the answer, not a single subject. हाँ, if outside a book and teachers knows that it is very important, but you have no answer, you can't find out the answer, that time teachers will give, otherwise not, otherwise no. So आप क्या करना है, read the story again and again. When you read the story, you can give the answer by oneself. Not a single teacher will be write the answer. Only question given, otherwise question find out from you. तो when you read the lesson, suppose आपकी सबसे ज़्यादा जो है वो है इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, जो लैंग्वेज है, ये जो है ये आपको पढ़ना है, और वन सब्जेक्ट इज़ देयर दैट इज़ द एसएस। आप जितना रीड करोगे इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द आंसर। आपके लिए ये सबसे अच्छा होता है। रीड द लेसन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो यू विल फाइंड आउट द आंसर। ओके, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, तो सो यू हैव टाइम, you are not coming to the school, don't waste your time. Up to 8th standard it's okay beta, but 9th onwards you read, make a timetable for you, make a timetable, और जितना 2-3 subjects are going, हाँ, recording,
तो you should be complete on same day. Or read the lesson like a story book. English, Hindi, Sanskrit, Gujarati and SS. These 5 subjects you read the story like a story book. संस्कृत में मैं आप लोग को पहले ही बोल चुकी हूँ, संस्कृत में हितोपदेश पंचतंत्र की कहानी मोस्ट ऑफ स्टोरी आर देयर. गुजराती में भी सेम चीज़ है. गुजराती मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स योर मदर टंग इज़ गुजराती, तो यू कैन रीड द स्टोरी बुक लाइक ए स्टोरी बुक. यू कैन रीड द स्टोरी. इंग्लिश, रीड द स्टोरी बुक. You think, I borrow this book from the Beehive book from the library. Don't think it is my textual book. You think I borrowed this book from the library, and I have to read within these 5 or 6 days, and I will be returned. Think this one. अगर आप सोचते हो जी मैं इसको रीड करके पढ़ लूँ और हमको 5 दिन 6 दिन में देना है, तो टेक टाइम. एक स्टोरी पढ़ने में आप 2 दिन 3 दिन पढ़ो. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, रीड द स्टोरी अगेन. ओके, आपको अच्छा लगा तो यू शेयर विथ योर सिस्टर एंड ब्रदर. आपको ये जो केजिया वाला स्टोरी है, यू कैन शेयर विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर. एट प्रेजेंट ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑल आर योर इन सेम होम. You are not going to play, you are not coming to the school, so your brother and sister also stay with you, so you have to share this story with them, so they will be enjoy. They think my brother know, my sister knows, okay, and you will be enjoy this one. Okay, if you will be do, then it is easy for you. तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगा. यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी. आपको स्टोरी समझ में आ जाएगा. आप क्या कर सकते हो, आपको और एक चीज़ होगा, आपके भाई बहन को जब बोलोगे ना, दे आर टेकन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टोरी. वो लोग आपको कुछ सवाल पूछेंगे एंड इट इज़ ईजी फॉर यू. वो पूछेगा केजिया कौन थे, मैकडोनल्ड कौन, तो यू विल गेट द आंसर फ्रॉम द स्टोरी. हम खाली बड़े से सीखते नहीं, हम छोटे से भी सीखते हैं. हम बड़े से खाली नहीं सीखते, हम किससे सीखते हैं, हम छोटे से भी सीखते हैं. तो आप इसके लिए क्या करोगे, रीड द स्टोरी एंड से द स्टोरी टू योर younger brother, sister, if your grandmother, grandfather also there. I know your mother has no time because cooking is not stopped. खाना तो बनना बंद नहीं हुआ. At present your father has gone business or workplace, otherwise work from home, but your grandfather, grandmother, brother, sister all are at home, and you read the story and say to them. They will be enjoy, you will be enjoy. Okay, and it is clear by you. It is clear by you to read the story. So be careful, safe, and read the story and write out answer by oneself in your notebook. Try to write by oneself. Okay, so if any problem will be faced, I hope this story is very nice, so you have no problem. So take care, be safe, and write answer. Okay, bye.